Hello everyone, a very nice morning to all of you. Students, this is Manish Singh and today once again I am before you with a new video, and today I am going to teach you one of the important topic from the grammar syllabus, and that is none other than the sentence. So students, in today's video we are going to learn about the definition of the sentence, that what is the actual meaning of the sentence and what are the kinds of the sentences are there in English grammar. As well, we will study some important tricks through which we will be capable to identify the different type of the sentences. So without wasting any more time, I would like to start the video and let's begin. So students, the first question in our mind that is going on the sentence. Okay, that what is the meaning of the sentence? So guys, you know that you have already grabbed, you have learned that what is the sentence? A group of words which have a complete sense, it's called a sentence. Simple. But let us see some example and then let me decide either this definition is correct or not. Okay. So students, first you look at this. I'm just going to give you some example. The first is this: Ram goes to a school. A very simple statement I am having. Okay, Ram goes to a school. So it has a meaning that is complete, and we are capable to get that what it's telling our expression. That is this: Ram goes to school. Ram school jata hai. Okay. So we have got this, the meaning of this group of words, right? So this is called what? Sentence. Yes, correct. Now tell me, according to the definition, what you learn here? Okay, let me mention here first the definition of sentence. Okay, look at a group of words. A group of words which have a complete sense or meaning is called a sentence. Okay, now this is your definition, and according to this definition, the example what I have written here for you, this is absolutely correct. Now you tell me one thing: if you have studied even the kinds of the sentences, then you must know that what is imperative sentence. Okay, so this is what go. I said to you, go. So what do you get? Yeah, jao means you have got the meaning of a statement of a single word. But here in the definition, it is written that a group of words, शब्दों का एक ऐसा समूह which has a complete sense, जिसका एक पूरा सेंस होता है, अर्थ होता है, भाव होता है, मीनिंग होता है, is called a sentence. उसे सेंटेंस कहते हैं, right? But this sentence, this one, it has no group of words. This is of a single word. Got it? So according to this statement, example, the definition is incomplete. So complete the definition and make it an appropriate. You must add here a word or a group of words. Now the definition what you have prepped since your childhood will be absolutely 100% correct. Okay, so students, you have got that what I have told you, okay, about the definition of the sentence. So looking at this example, you can see that the definition what I have mentioned here for the sentence, that is correct now what you have learned earlier. A word or a group of words which has a complete sense is called a sentence. Okay students, so now I am going to tell you what are the kinds of the sentences. If you have noted down, then well, otherwise you can pause the video and note down. Okay, so students, now I am going to tell you that what are the different type of sentences. So first, as we talk about the kinds of the sentences, okay, kinds of the sentences, then you must know
that there are 5 types of sentences in English grammar. Okay, what are they? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the first one is assertive sentence. Okay. Second is interrogative sentence. Okay. Another one, just imperative sentence. And next one, optative sentence. Okay. And last one is exclamatory sentence. So students, now in this way I have completed the fifth of the sentence here as names of the kinds. So assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. Note down please, hurry up. Okay, so next I would like to tell you in the detail that what is assertive, imperative and interrogative, optative as well as exclamatory sentence. Students, as you have studied here, the first kind of sentence is assertive. Okay, so now let me tell you in a short of a moment, short of time, what is assertive sentence. Assertive sentence is also known as declarative sentence. Okay, and you know that what is the Hindi meaning of declarative? Declarative means declare करना. Understood? Declarative is made of declare. Understood? Declare means किसी बात को निश्चित कर देना. Okay? किसी चीज की घोषणा कर देना. So whatever the questions are there, okay, whenever you are giving the answer of any question, you always use an assertive sentence to give answer of any question. Remember this. Okay. So assertive sentence हम किसे कहते हैं अगर हम बात करते हैं. Okay. So सिंपल सी बात है, आप अपने माइंड में रख सकते हो कि assertive sentence वे सेंटेंस होता है जो किसी मुद्दे को, किसी बात को कह सकते हैं, क्या करता है, निश्चित कर देता है, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यस या नो, हाँ या नहीं, बात क्लियर हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये कुछ तो हो गया, मतलब ये तो एग्री हो गया या उसने रेफ्यूज कर दिया. राइट. आई मीन व्हाट, असर्टिव सेंटेंस जो होता है दो प्रकार के होते हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव, ओके, एंड सेकेंड इज नेगेटिव. ओके, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करता है कि ये बात को जब आप कुछ भी कहते हैं तो वो एग्री हो जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, बात को स्वीकार कर लेता है. जैसे मैं कहता हूँ आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, आप कहते हो यस आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे. आप क्या हो गए, एग्री होकर के आपने मुझे जवाब दिया, आंसर दिया कि यस आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल. दिस इज अ व्हाट, this is an assertive sentence, and this type of assertive affirmative because you were agree with me. Right? अगर आप मुझे क्या करते हैं, डिनी कर देते हैं, मना कर देते हो, रिफ्यूज कर देते हो बात को. ओके, अगर वही क्वेश्चन मैं दोबारा करता हूँ कि आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, आप कहते हो नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, तो आप क्या कर रहे हो, आप मना कर दे रहे हो, आप कह रहे हो कि यार आप स्कूल नहीं जा रहे हो आज. ठीक है, तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, डिनी कर रहे हैं. राइट. असर्टिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ओके, असर्टिव सेंटेंस तो होते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव क्या करता है, बात को स्वीकार करता है, नेगेटिव डिनी कर देता है. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे बात को क्या किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है. एक क्या है, अफर्मेटिव. यदि मैं कहता हूँ
आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो मैं बात से मना कर रहा हूँ, मैं नकार रहा हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ। ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अफर्मेटिव आप समझ गए, निगेटिव समझ गए, बट आई नो वन डाउट इज गोइंग ऑन इन अवर माइंड सो फॉर दैट व्हाट इज असर्टिव, राइट? यस, लेट मी क्लियर दैट। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वे हमेशा ही आपको आइडेंटिफाई करना है। इसको देखो, देखकर आप बता दोगे कि ये असर्टिव है या नहीं है। वो एक ट्रिक के द्वारा स्टेटमेंट के पहले देख लो, पहले वर्ड को, और स्टेटमेंट के लास्ट में देख लो। क्या देखना है? ये देखो कि जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, वो किससे शुरू है? सब्जेक्ट से शुरू है या नहीं? ओके, सब्जेक्ट लगा है पहले। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है या नहीं? ओके, तो वे स्टेटमेंट इंग्लिश के सेंटेंस, ठीक है, जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और अंत में फुल स्टॉप लगता है, ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, आई होप कि अभी आप समझ गए होंगे। गॉट इट? एंड असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ओके, सो अफर्मेटिव जो है ये किसे कहते हैं और नेगेटिव किसे कहते हैं, वो भी आप समझ गए होंगे। अफर्मेटिव बात को स्वीकार करता है, नेगेटिव क्या करता है? बातों को देरी करता है, मना कर देता है। इसमें नेगेटिव में हमेशा नॉट लगा होता है या नो या नेवर का यूज रहता है। ओके, एंड आई होप गाइस कि आप लोग असर्टिव सेंटेंस समझ गए होंगे। सो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ओके, और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। Okay students, so completed the first one. Now let us talk about the second type of sentence. This is what? Interrogative sentence. Okay. Interrogative sentence. Interrogative sentence क्या होता है? यदि हम बात करते हैं, then you must know that what is the meaning of interrogative. Means interrogation, question, प्रश्न। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा। ऐसे इंग्लिश के स्टेटमेंट सेंटेंस, ओके, जिनके द्वारा आप किसी से कोई इंक्वायरी कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, ओके, कुछ प्रश्न उठा रहे हो उससे, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हैव यू टेकन योर डिनर, डू दे प्ले हॉकी। इस तरह से क्या हो रहा है? सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या वे लोग स्कूल जा चुके हैं, ये सब क्वेश्चन है। ओके, तो जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं, क्वेश्चन पुट अप करने के लिए जो आप स्टेटमेंट यूज करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके फाइन। अनदर चीज है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, ये भी आपके इसके भी दो टाइप होते हैं। ओके, कौन से होते हैं? पहला होता है यस नो टाइप, इसे कहते हैं यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा होता है जिसे कहते हैं WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, यस नो टाइप एंड WH टाइप। यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहेंगे, कैसे क्वेश्चन को कहेंगे, यदि ये आपके माइंड में चल रहा है तो क्लियर कर दें कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम यस से या नो से दे सकते हैं। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू टू एग्जाम्पल। दो सेंटेंस आपसे पूछते हैं, दो क्वेश्चन रखते हैं, आप हमें क्लियरली आप बता दोगे कि इसमें यस नो कौन सा है, WH टाइप कौन सा है। ओके, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ ना से दिया जा सकता हो, उसे कहते हैं यस नो टाइप। आर यू गोइंग टू स्कूल? यस, आप कह सकते हैं यस तो भी आंसर हो गया, आप कहते हैं अगर नो तो भी आंसर हो जाता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ आर यू टुडे, आप कहते हैं यस या नो, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं है। ओके ना, अभी समझ में आया? हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसे हैं, आप कहते हैं हाँ या नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं पूछता हूँ आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या आज आप स्कूल जा रहे हो, आप कह सकते हो हाँ या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो उसे कहते हैं यस नो टाइप, और जिसका जवाब आप हाँ नो से नहीं दे सकते हैं उसे क्या कहेंगे?
WS टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब एक और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, उसे भी देख सकते हैं। देखिए यस नो क्वेश्चन जो होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो WS टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये होता है, इन दोनों के अंत में हमेशा इंट्रोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, एक चीज आप माइंड में रख लो। दूसरी चीज, अगर यस नो टाइप क्वेश्चन है तो इसकी जो शुरुआत होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, सहायक क्रिया से होती है, और जो WS टाइप होगा ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड। ओके, क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है? जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, which, ओके, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ऐसे जो क्वेश्चन मतलब करने के लिए वर्ड यूज करते हैं उनसे शुरुआत होगी और क्वेश्चन मार्क लगेगा, WS टाइप हो गया। यस नो टाइप कब होगा? जब हेल्पिंग वर्ब लगेगा शुरू में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, एक एग्जांपल देख लो। जैसे मैं कहता हूँ कि डू यू रन देयर, डू यू रन देयर, क्या वहाँ पे दौड़ते हो? तो देखो इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है और इंड जो है क्वेश्चन मार्क से हुआ है। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप क्वेश्चन। अब यदि मैं पूछता हूँ आपसे हाउ आर दे लाफिंग, हाउ आर दे लाफिंग, वे लोग कैसे हंस रहे हैं? हाउ आर दे लाफिंग, वे लोग कैसे हंस रहे हैं? यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया है और लास्ट में हमने क्या यूज किया? इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? यह बिल्कुल सही यस नो टाइप हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे और लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं इसको पहचानना कि कैसे हम पहचान सकते हैं। सो प्लीज नोट डाउन क्विकली। So now students, the next is what you know very well. The third one of the sentence is imperative sentence. Imperative sentence. Okay. So what is the imperative sentence? यदि हम बात करते हैं imperative sentence क्या होता है? So you must know, आप जरूर जानते होंगे imperative sentence किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस को जो क्या करता है? ऑर्डर देता है, आदेश देता है। ओके, ऐसे सेंटेंस जो आपको किसी प्रकार का सुझाव देता है, एडवाइस, सलाह देता है। ओके, या फिर किसी प्रकार से आपसे कोई विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, विनती। ओके, तो तीन चीजें याद रखिए माइंड में। ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग हम किसी से कोई कार्य करने के लिए या नहीं करने के लिए, मना करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैं ही कहता हूँ वहाँ मत बैठो, इधर आ जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ? आपको आदेश दे रहा हूँ भाई कि वहाँ मत बैठो, यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, एडवाइस यानी कोई सुझाव देना। जैसे मैं कहता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत करो। आपको मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि ऐसा मत करो। मैं यही कहता हूँ कि ऑलवेज यू टेक, ओके, ऑलवेज टेक हेल्दी, ऑलवेज टेक हेल्दी फूड, हमेशा स्वस्थ भोजन खाओ, हमेशा स्वस्थ भोजन लो या खाओ। क्या तात्पर्य क्या है कि भाई आपको स्वस्थ भोजन ही करना चाहिए, एक सुझाव दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि कृपया आप यहाँ जाओ, कृपया वहाँ चले जाओ, तो कृपया लगाए। कृपया की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? प्लीज या फिर काइंडली। प्लीज या काइंडली, ये दो वर्ड है। जब स्टेटमेंट पे यूज किया गया ना प्लीज या काइंडली, वो क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। ठीक है ना, जैसे प्लीज मेंटेन साइलेंस, कम हियर काइंडली, गिव मी दैट बुक प्लीज। तो ये कभी कभी प्लीज स्टेटमेंट के लास्ट पोजीशन पे लगता है, कभी कभी पहले लगता है। ओके, सो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर लगा है और इससे रिक्वेस्ट सेंस आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या कर रहा है? आपसे विनती कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना, कैसे पहचानेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। ओके, और इसकी शुरुआत अगर निगेटिव होती है तो डोंट से हो जाती है। ओके,
अदरवाइज ये एक्शन वर्ब से ही शुरू हो जाती है। एक्शन वर्ब जो होते हैं, जैसे एक्शन वर्ब का मतलब कुछ कार्य करने वाले शब्द, जैसे आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना गाना, उठना बैठना, ठीक है, पढ़ना पढ़ाना लिखना, ये सभी क्या है? गो, कम, प्ले, राइट, रीड, टीच, स्पीक, लाफ, स्माइल, ठीक है, ये सभी क्या है? एक्शन वर्ब। तो कभी भी एक्शन वर्ब से डायरेक्टली शुरू हो जाता है, निगेटिव होता है तो डोंट से। समटाइम क्या होता है कि अगर रिक्वेस्ट वाला सेंस आ जाता है तो प्लीज या काइंडली प्रारंभ में आ जाते हैं। तो अगर यार प्लीज काइंडली से शुरू हुए एक्शन वर्ब से या डोंट से शुरू है सेंटेंस आपका, लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है, ये कौन सा स्टेटमेंट होगा? हाँ बिल्कुल करेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, ओके, डोंट से शुरू है, फुल स्टॉप। इंपरेटिव को मैं कहता हूँ sit down प्लीज, कृपया बैठ जाओ, sit down प्लीज, कृपया बैठ जाओ, इसमें एक्शन वर्ब से शुरू है और फुल स्टॉप लगा है। अनदर इज, यदि मैं बोल देता हूँ काइंडली क्लोज द ड्रॉवर, काइंडली क्लोज द ड्रॉवर, तो यहाँ पे काइंडली लग गया, प्लीज लग गया, और यहाँ पे फुल स्टॉप। ये सभी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसको एक बार और अगर चाहे तो आप पढ़ लो, और पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स बना लो सेल्फ, ओके, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और बाकी जो रिमेन है 2 काइंड्स, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए श्योर बताएंगे, वीडियो बनाएंगे इसके लिए कल। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।